Martzangan kayas? Tzatji rupi pav. Balas 5 tranes demo. کیا آپ بتا سکتے ہیں اس روزے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے. سورہ بقرہ میں. السلام علیکم. آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. شکریہ تھینک یو سو مچ. ماما کا بھی دیکھا ادھر. اچھا سارے چلیں کیسے لگتے ہیں؟ بہت اچھے. ہم رمضان میں ہیں اور جشن رمضان کے ایک اور شمارے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. اس شمارے کے چلتے آج میں شاداب گیلانی اور میرے ساتھی شعیب وانی، عمر ڈار اور مشتاق الاسلام آپ پہنچے ہیں عید مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے. اس شمارے میں آج ہم آپ کو ان خاص مارکیٹ میں لے جائیں گے جہاں عید کی شاپنگ خاص طور پہ کی جاتی ہے، پھر چاہے وہ گونیکھن مارکیٹ ہو، مہاراج بازار ہو یا کئی سارے اور مارکیٹ ہو جو سری نگر سٹی کی ویسینٹی میں ہوتے ہیں. ان مارکیٹس کو ایکسپلور کریں گے، یہاں لوگوں سے بات کریں گے اور پھر ان کے تاثرات عید کے حوالے سے جانیں گے. تو چلیے چلتے ہیں. بازر لُکو سۭتۍ کھچا کھچ بٔرِتھ تہٕ اَصٕل اکھ سۄ گہما گہمی یۄس زَن چھےٚ عیٖذ پٮ۪ٹھ آسان. بازرَس اندر سُہ ہرشِ ہُلاس آسان، سُہ جذبہٕ آسان، تِم شوقیہ آسان تہٕ سُہ وَسہٕ درٛوٚستہٕ چِکہٕ یَتھ وَنو کہِ سُہ چھُ سٲنِس بازرَس منٛز بِلکُل سیوٚد باسان کہِ نہ ییٚتہِ چھُ عیٖد بازار سیٚدِ سیوٚد باسان تہٕ خٔریٖدار چھِ کٲفی تعدادَس منٛز مارکیٹَس سٲنِس اندر خٔریٖدٲری ہٮ۪وان خٔریٖدٲری کران. بالخصوٗص چھِ ییٚتہِ زَن یِم ٹیٖن ایجٕڈ چھِ یا یِم زَن بَچہِ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ زیادٕ چویِس یَتھ مارکیٹَس منٛز چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اکھ شہرِ سرینُک اکھ لٔڈیٖز مارکیٹ تہٕ اَمہِ کِنٮ۪تھ چھِ یور زیادٕ تر لٔڈیٖزے یِوان سانہِ یا کورِ یِن یا سانہِ بیٚنہِ یِن یا تِمن سۭتۍ تِم بَچہِ چھِ آسان. تہٕ الحمدُاللہ بہٕ وَنہٕ کہِ وٕنکیٚس یِمن پٔتمیو 5 دۄہن پٮ۪ٹھ ہر کانٛہہ دُکاندار چھُ مُطمعیٖن. یہِ چھُ صحیح کہِ سۄ کٲم چھَنہٕ کہِ مطلب دُکاندار اوس تنگ گژھان بہٕ کِتھ کٔنۍ کٕنہٕ، مگر یہِ تہِ چھُ صحیح کہِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان دُکاندٲری یہِ چھِ مِٹھٕ خٔریٖدٲری. اکھ چھُ یِوان بیٛاکھ چھُ نیران، اکھ چھُ یِوان بیٛاکھ چھُ نیران تہٕ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ تہِ بیٚیہِ چھُ منٛزٕ وقفہٕ تہِ میلان تھوڑا ریسٹ تہِ میلان تہٕ یِہوٚے خٔریٖدٲری چھِ أسۍ بیسکلی یَژھان. اَتھ منٛز چھِ خٔریٖدارَس تہِ یِوان وٕچھنہِ تہٕ صحیح پٲٹھۍ اَسہِ تہِ چھِ یِوان کٕننہٕ اَصٕل پٲٹھۍ. جشن رمضان کا آج کا شمارہ آپ تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیا ہے فائبر سیمنٹ، جام کیا شویکلی، سلوہا جین کے، فارچون ریزورٹ، کول فوڈز اینڈ اسپائسز، اسٹار نائٹ ریسٹورنٹ ریزورٹ اور الفا سوزوکی نے. اور اس شمارے میں میرے وارڈروب کا خیال رکھا ہے رائل کنسرٹ. روزے یعنی آرگنائزڈ واقعے کا تصور دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب میں موجود ہے. یہودیوں میں زوم کی روایت ہے جس کا مقصد دعا، توبہ اور خدا کی قربت حاصل کرنا ہے. یہودیوں میں یوم کفارہ کی نہایت ہی اہم اہمیت ہے. اس دن یہودی 25 گھنٹوں کے لیے کھانے پینے اور دیگر جسمانی راحتوں سے اجتناب کرتے ہیں. اس کے علاوہ تشہبہ اور کچھ اور دنوں میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے. عیسائیوں میں روزے کا تصور زیادہ تر حضرت عیسیٰ کے 40 دن کے روزے سے منسلک ہے جسے لینٹ کہا جاتا ہے. 40 دنوں کے اس دوریے کو ایسٹر سے پہلے آبزرو کیا جاتا ہے اور اس میں مخصوص پکوانوں سے پرہیز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کے مختلف فرقوں میں کچھ اور روزوں کی بھی روایت ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ روزے مسلمانوں پر اسی طرح فرض کیے گئے جیسے ان سے قبل کی قوموں پر فرض کیے گئے. سورہ بقرہ کی 4 آیت میں رمضان کا تذکرہ ہے. جہاں تک روزوں کا ذکر ہے وہ کم از کم 13 مرتبہ آیا ہے. اسلام میں روزے نہایت ہی آرگنائز ہیں اور روزے دار سحری سے افطار کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے. میرا نام ریاض احمد جان. ریاض صاحب بیٹا آپ کا نام؟ فاطمہ ریاض. فاطمہ ریاض. ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں حضرت؟ ہم بزنس کرتے ہیں. کیسا چل رہا ہے آج کل؟ الحمدللہ اوپر والی کی مہر ہے. ماشاءاللہ. کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. بالکل صحیح. اس وقت میں
जबकि हालात बहुत कशीदा है, बिजनेस के हालात बहुत ख़राब है, खुसूसन कश्मीर के। तो ये तो अल्लाह ताला का फजल और एहसान है कि वो सुबह निकालता है भूखा मगर शाम को भूखा नहीं लेता है। बिल्कुल सही। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है? बहुत ही आसान सा सवाल है, और उसके बाद हम आपकी इस छोटी सी प्यारी सी बेटी से भी कुछ सुनेंगे, फिर हम एक छोटा सा तोहफा आप दोनों को देंगे, ठीक है? हम रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, यह हम सब पे फ़र्ज़ है, तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। क्या आप बता सकते हैं इस रोज़े का हुक्म किस सूरत में आया है? ये सूरह बकरा में आया है। सूरह बकरा में। जी। मैंने इनसे सवाल या पूछा, अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमसे पहले भी उम्मतों पे ये रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, और जो उसी तरह गुज़श्ता हम पे भी उम्मत, फ़र्ज़ किया। इसी तरह हम पे भी। क्योंकि इसमें क्या होता है, रोज़े में क्या अल्लाह ताला क्या चाहता है? रोज़े में चाहता है अल्लाह ताला तक़वा, बिल्कुल कि आपको तक़वा और परहेजगारी बिल्कुल सही। बस हासिल हो। बिल्कुल सही। और रोज़े में अल्लाह ताला गिफ्ट क्या देता है? उसको खुद अल्लाह ताला मिल जाता है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। दीन नसीहा, दीन खैर खवाई का नाम है। इत्तक़िल्लाह हिस्मा कुंत, जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो। ला तहसदु, आपस में हसद ना करो। वल्ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इन दोनों को हम एक तोहफा देंगे, ये आप दोनों के लिए। ये हमारे स्पॉन्सर है खैबर सीमेंट। तो आपके बाबा ने भी सही जवाब दिया, बहुत अच्छा सा, और आपने हमें इतनी प्यारी प्यारी हदीस सुनाई, ठीक है? सूरह बकरा की 183 आयत में ईमान वालों को हुक्म किया गया है कि उन पर रोजे फर्ज किए गए हैं, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। मार्केट च कंपटीशन जनाब, क्या कंपटीशन? कंपटीशन हर कुछ कंपटीशन पे पेवान काम कर, बाकी नहीं कि बेचो रब सुन फजल बे क्या को वन। ईज पे मतलब ड्राई फ्रूट करान ज़्यादा पसंद, ड्राई फ्रूट करान ज़्यादा, मेहमानस खतर ड्राई फ्रूट वारिया करान पसंद। बशीर साहब, कब से ये ड्राई फ्रूट का बिजनेस कर रहे हैं आप? मैं तो 83 से कर रहा हूँ। 83 से? Yes. तो तकरीबन 40 साल हो गए करते हैं। ऑलमोस्ट मोर देन दैट। मैं जब यहाँ आ गया तो उस वक्त ड्राई फ्रूट का इतना काम था, मैंने आज तक वो मैं सपने में भी वो काम नहीं देखूंगा जो 40 साल पहले था। यस एग्जैक्टली, फ्रॉम 83 to 90। अच्छा, ऐसा काम अभी नहीं आया कभी। ऐसा काम कभी नहीं। रमज़ान में मोस्टली लोग होते हैं, इबादतों में ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि खुदा के साथ अपना लो लगाएं, खुदा को राज़ी करें। तो उसके बाद जब ईद आती है तो ईद के बाद नए सिरे से लोग अब अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त एक ही मतलब सोच होता है लोगों को कि किसी भी तरह से हम अपने गुनाहों से छुटकारा पाएं। बिल्कुल सही। एक छोटा सा तोहफा आपको देंगे, ये हमारे स्पॉन्सर है रॉयल कंसेप्ट, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। जज़ाकल्लाह। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप जवाब दे सकते हो? ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? आप मुझे बता सकते हो जो रोजे हम रखते हैं ये किस महीने में फर्ज किए गए? रमज़ान। रमज़ान में। और कोई तो नहीं ऐसा खास डिफरेंट? मैंने इनसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछा कि रोजे किस महीने में फर्ज किए गए हैं, बता दो। आप ठीक हो? ठीक हो ना? क्या बोला आपने? रमज़ान में। तो सही तो है। ये हमारे स्पॉन्सर हैं अलोहा जैन के, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। थैंक यू। मुसलमानों पर रोजे रमजान के महीने में फर्ज किए गए हैं, जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 9वां महीना होता है। मार्केट से आसमान जमीन फर्क आम कम कहें कम वारिया तो लुक त परेशान पोस त लुकन कहें ये जाए तुम 2 पीस या 1 पीस आज अवॉइड कर अकोई पीस या अड़न प्रोन वनस तथ कड़ान जड़ मार्केट डाउन हद खुद ज्यादा दुकान नई ऑनलाइन बिजनेस चलान
मगर ये दुकानदारस नश ब्रोट कन इंसान हेवान करान चीज सह असल गसान ऑनलाइनस पे पई क्या गसान सह मैं हेको पे वापस दित दुकानदारस इंसान खरीदार वुचान आराम सान वुचान गलत मा ठीक मा तुलान दिवान पोस तो नेरान खुदा सवाल बे वनकस गुरबत तय मज हालत तस खराब वह हेतन वार नॉर्मल गसन ठीक हाँ सह महराज साहब कारपेंटर फूड बिजनेस कर मैं लगभग 10-15 वरी 15 वरी माशाल्लाह क्यों चला बिजनेस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस तो एक सहल सवाल करेनी सवाल इंशाल्लाह ताला तो दिस सही जवाब दिल तो अख तोफ ठीक छस वनकन चलान माह रमजान छना चलान अस 5 नमाज फर्ज तो सवाल कि रमजानस मज कस नमाज एक्स्ट्रा नमाज पढ़ान मैंने इनसे सवाल पूछा रमज़ान में पढ़ी जाने वाली इजाफी नमाज कौन सी है बाकी दोन 5 नमाज पढ़ान तुम फ़र्ज ये फ़र्ज नमाज कह मगर बाकसरत मुसलमान नमाज पढ़ान ये कस नमाज तरई बेमा लॉक कर दे तरावी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है यम स्पॉन्सर जाम कैश वीकलीज 3 तरफ अख तोहफ तुम शुक्रिया रोज़ा खोलने के बाद नमाज इशा के साथ एक मखसूस नमाज बाजमात अदा की जाती है जो सिर्फ रमज़ान के महीने में अदा करने की रिवायत है जिसे तरावी कहते हैं। मुसलमान दुनिया में तरावी का गैर मामूली एहतमाम होता है और बेशतर मसाजिद में इस नमाज की अदायगी के दौरान पूरे माह में कुरान मजीद की तिलावत होती है। स्पेशल हमारे पास है होम मेड रोटीज हमारे पास बनती है जी हाँ जी हमारे पास तो बहुत वैरायटी मिल जाएगी आपको एक तो मैदे की मिल जाएगी और आटे की मिल जाएगी और 10 रुपये और मिल जाएगी आपको ये मक्की की मिल जाएगी चावल की मिल जाएगी और लच्छा पराठा मिल जाएगा आलू पराठा मिल जाएगा। ये नॉर्मल बेकरीज पे घर वाली रोटी नहीं ये तो कंसेप्ट क्या है आज का है नहीं इसमें बहुत टाइम हो गया मुझे इस बार लगा 3-4 साल इस बात में हो गए। मैं अपनी बात करूँगा मैं तो पिछले 20 साल से कर रहा हूँ ये तो ये मैं तीसरी जनरेशन है मेरी है तो ये 1965 का है इस टाइम बात कर सकते हैं इतना पॉसिबल नहीं था फ्लो उतना अभी नहीं है उस हिसाब से नहीं उस हिसाब से आपके लिए क्या कुछ चीज़ है खास क्योंकि बिजनेस में भी ख्याल रखना पड़ता है बहुत सारी तो आप क्योंकि ओवरऑल एक मुसलमान को तो ओवरऑल बेहतर होना चाहिए इंसान को ओवरऑल बेहतर होना चाहिए लेकिन जैसे हम सब कहते हैं कि ये ट्रेनिंग पीरियड है तो इसमें खास तौर पे आप किन चीज़ों पे खुद ख्याल यही वो महीना होता है जिसमें इंसान को मतलब सुधरने का मौका मिलता है और ख़ास कर कि मेरे को किस हिसाब से मेरे को कोई चीज़ भेजनी है कितना ठीक रहेगा कितना मतलब अपने हिसाब से जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा जो बिज़नेस है वो इस हिसाब से करना है जो कि हम पे जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है जिन्होंने मतलब उस तरीके से किया है वैसे ही हमें भी वही फॉलो करना है। तो ये बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की कि जैसा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो वैसे ही हमें भी जो है अपने बिजनेस को चलाना चाहिए। ये हमारे स्पॉन्सर हैं अल्फा सुजुकी उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। नाम है भाई आपका? अब्दुल हादी क्या करते हैं आप? मैं अभी अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है चले माशाल्लाह हिसाब किताब के पक्के हैं आप बिल्कुल से। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसमें क्या डिफरेंट कुछ अलग करते हैं बाकी महीनों से जो शायद बाकी महीनों में कहीं ना कहीं नहीं करते हो? जी खुसूसन हम इबादत जो है वो एक्स्ट्रा करते हैं जो कि हमें चाहिए कि 12 महीने में कंटिन्यू करना। बिल्कुल सही। और हम देखते हैं कि इस रमज़ान में जब हम इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें कैपेसिटी दी है कि हम 12 महीने में कंटिन्यू इबादत कर सकते हैं तो इसलिए हमें चाहिए ट्रेनिंग पीरियड है जी बिल्कुल सही हादी। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान के मुतालिक एक सवाल है कि आप मुझे बता सकते हैं जो हम रोज़ा रखते हैं 30 दिन या 29 दिन रोज़ा रखने का बुनियादी मकसद क्या है कुरान के मुताबिक? ताकि हम तकवा इख्तियार करें। पक्का और कुछ तो नहीं है ये इतना ही है जी सोच लें एक बार आप सोच सकते तकवा इख्तियार करना बिल्कुल सही जवाब। ये हमारे स्पॉन्सर है कावल फूड्स एंड स्पाइसेस उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा।
उम्र तकाज तक बदलो पकनुक वसनुक बहनुक अंदाज तक बदलो मगर जाय बदले जाय न बदलुक वजह यह कि मिडिल क्लास फैमिली सहित कह नफर वाबस्त आसान अम सह प्लान कर लॉन्ग प्रोसेस अमिस पे स्ट्रगल कर बच्चन ट्यूशन कर बराबर तुंद यह फीस कर बराबर तुंद रहन सहन ये जन कि वल्लाहु खैरु राज़िक़ीन अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ दिन वोल बिल्कुल सही यह सोरे अल्लाह ताला पानस दिन बिल्कुल सही वो सह अराउंड थोमुत घर को हेड ऑफ द फैमिली जुट अमिस खुदा सबन जिम्मेदारी थोमुत सही न तो रिज़्क़ दिन वोल रब्बुल इज़्ज़त बिल्कुल नफ्स भरन वोल तो रब्बुल इज़्ज़त तुम जरिए यहंद खतर रब्बुल इज़्ज़त सोरे बनो यमन किताब दिन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तो या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बनो तुहद खतर यह सोरी आलमस खतर रहमत बिल्कुल तमो कर फाक कशी मगर अस कर रबन फाक कशी आप तुम वो 2008 मज एजुटेशन 2017 मज लॉकडाउन कोविड बाकी चीज़ मगर अस खा अल्लाह ताला जबरदस्त इस चीज़ न ये सात मो 2014 मज आव फ्लड मिनरल वाटर सो छोल बुत जबकि वो पानी पीने का होता है सह त्रेश चवान मो बड़ बड़ रईस मिडिल क्लास नफर हे त्रेश चेत सह हे एफोर्ड कर मगर अल्लाह ताला छल तम सत बुत यह तम करीमी सोनिस मौसम चीज तावन अगर कस मज मस्जिद यी वन गोटे तम रमजान नमाज जैसे हमने ठेका ले रखा है कि अल्लाह की जन्नत हमारे हाथ में सही कौन है और गलत कौन गलत और सही अल्लाह के हाथ में बिल्कुल वो किसको बख्शे उसके हाथ में बिल्कुल लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक जो कुरान में आया है हदीस में आया है हमें उसके मुताबिक चलना है बिल्कुल उसी में 100% कामयाबी बिल्कुल बिल्कुल सही बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अख लाख तोहफ दिमो सन स्पॉन्सर स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट गांधरबल तीन तरफ लकट तोहफ तुम कर असल खूबसूरत कह दिल को खुश अल्लाह ताला थे आबाद बरकत दिन शुक्रिया शुक्रिया क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आयान है। क्या करते हैं भाई आप? मैं पढ़ाई कर रहे हैं माशाल्लाह। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान में क्या कुछ स्पेशल क्या कुछ डिफरेंट करते हो? रमज़ान में तो अभी ज़्यादातर इबादत ही करनी चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, तहज्जुद पढ़नी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बहुत आसान सा, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान से रिलेटेड पूछे, ठीक है? जो हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, रमज़ान के रोज़े अमूमन कब तक रखे जाते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल। ऐसे तो रमज़ान के रोज़े रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। वो तो सही है, मतलब कब तक, क्या इसका कोई टाइम फ्रेम है, कुछ है, क्या है, क्या किस चीज़ के बाद ख़त्म हो जाते हैं, किस चीज़ के आने पे ख़त्म होते हैं? शवाल का चांद दिखता है तो उसके बाद, शवाल का चांद नज़र आने पे, हाँ उसके बाद रोज़े नहीं रखते। वो रमज़ान उतना ही होता है ना, तो शवाल का महीना स्टार्ट होता है उसमें रोज़े नहीं रखते। ओके, शवाल का चांद नज़र आने तक बिल्कुल दुरुस्त है, यानी जब शवाल का चांद नज़र आता है तो ईद का ऐलान कर दिया जाता है। ये हमारे स्पॉन्सर है फॉर्चून रिजॉर्ट, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। मुसलमान रोजे हिजरी कैलेंडर जो कि ल्यूनर कैलेंडर है उसके मुताबिक रखते हैं। रमजान का चांद नजर आए तो रोजे शुरू हो जाते हैं, वहीं शवाल का चांद दिखे तो रोजे मुकम्मल हो जाते हैं। ईसवी कैलेंडर के मुकाबले में हिजरी कैलेंडर में तब्दीली आती रहती है, इसीलिए रमजान के दिन हर साल कम से कम 10 दिन तक आगे पीछे होते हैं। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं बल्कि इंसान के लिए हिदायतनामा है, लेकिन इसमें बयान किए गए बेशतर हक़ाइक़ जदीद साइंस से हम आहंग हैं। देखिए कुरान और साइंस पर मबनी ये सेगमेंट। इंसान की पैदाइश में माँ अपनी जान जोखिम में डालती आ रही, लेकिन वजूद ज़ीस्त के बेशतर अदवार में ये पैदाइश के बाद भी कई समाजों में मुजरिम के तौर पे डेल्ट की जाती है, खुसूसन उन सोसाइटीज में जहाँ बच्चियों की पैदाइश पर लोग खुश नहीं होते। ये कहानी अरब के दौर जहालियत से ही जारी है। बच्चा पैदा होने की पूरी कहानी समझने और जदीद आलात से इस प्रोसेस को देखने के बाद भी इंसान ने काफी वक्त सर्व किया
یہ کمپلیکس معاملہ سمجھنے میں کہ بچے کے جنس کا فیصلہ کون کرتا ہے اور یہ رحم مادر میں کیسے ہوتا ہے۔ 1677 میں ایک ڈچ سائنسدان نے میل سپرم کو خردبین کے نیچے پہلی بار دیکھا۔ 1827 میں انسان سمجھ گیا کہ فیٹس تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب سپرم اور انڈا دونوں موجود ہوں۔ کیڑوں کے سپرم کی تحقیق کے دوران 1891 میں ہرمن ہینسکنز نے ایک سپرم میں کروموزومز کی انوکھی کمبینیشن دیکھی اور اسے ایکس ایلیمنٹ کا نام دیا۔ بعد میں 1905 میں انہی کروموزومز کو ایکس کا نام ملا جب نیٹی سٹیونز اور ایڈمنڈ بیچر ولسن نے یہ بات ثابت کر دی کہ مرد لوگ دو قسم کے کروموزومز بناتے ہیں، ایک ایکس اور دوسرا وائی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ سپرم میں اگر ایکس کروموزوم ہو تو بچہ لڑکی ہو سکتی ہے اور اگر یہ صرف وائی ہو تو لڑکا پیدا ہونے کی گنجائش ہوتی ہے۔ 2003 میں ہیومن جینوم پروجیکٹ نے اس تحقیق کو اور بھی اعتبار بخشا۔ اب سوچنے سمجھنے والے لوگ سب جانتے ہیں کہ رحم مادر میں پلنے والے بچے کے جنس کا تعین ماں کی وجہ سے نہیں بلکہ باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عورت اب بھی ماں ہونے کے باوجود ایک مجرم کے کٹگرے میں صرف اس بات پر کھڑی کر دی جاتی ہے کہ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا نہ کہ بیٹے کو۔ قرآن مجید میں اس پروسیس کا ڈائریکٹ ریفرنس تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں حقائق کو اشکار کرنے کے لیے کبھی ترتیب کا سہارا لیا گیا ہے اور کبھی کسی خاص چیز پر ریپیٹڈ فوکس کرتی ہے۔ اگر رحم مادر میں پلنے والے بچے کی جنس کو لیں تو اس کے حوالے سے قرآن مجید میں دو کلیئر ریفرنسز موجود ہیں۔ ایک تو سورہ نجم میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا شبہ اس نے جوڑا یعنی نر اور مادہ دونوں کو پیدا کیا نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالے جاتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس نطفے سے مراد غیر معمولی رول ہے جو وہ بچے کے جنس کے تعین میں نبھاتا ہے۔ دوسرا تذکرہ سورہ قیامہ میں کیا گیا ہے جس میں انسان سے سوال کیا گیا کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سواری، پھر اس سے مذکر اور مونس کا جوڑا بنایا۔ علماء، مفسرین اور سائنس جاننے والے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کے مطابق ان دونوں آیات کی ترتیب اور ترکیب سے یہ بات واضح ہے کہ انسانی سپرم بچے کی جنس میں بنیادی رول ادا کرتا ہے اور اس میں ماں کا کوئی رول نہیں، اور یہ حقیقت سائنس کو صرف 150 سال سے پتا ہے۔ جشن رمضان کے آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شمارہ پسند آئے گا اور آپ اسے اسی طرح سراہیں گے اور پیار دیں گے جیسے آپ نے ہمارے پچھلے شماروں کو سراہا اور پیار دیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔